biotechnological application in the biotechnology application biotechnology logy application in medicine. We studied that insulin, genetic engineered insulin, stem cell technique, gene therapy. Now, the next is of molecular diagnosis. Molecular diagnosis means nowadays the different disease, the human being is affected from the different disease, and for the disease the effective treatment is required and early diagnosis is also required. Early diagnosis, the traditional diagnosis way, we cannot identify any disease early we cannot identify as early as possible, because present time diagnosis is based upon symptoms, and symptoms released after the particular condition. Means whenever that bacteria or virus affected to our body, they will grow inside the body millions time after they release the symptoms. If we detect the particular disease at initial level or at early level, we can easily find out the particular type of disease and remove from the body. So new types of diagnostic patterns that is depend upon the biotechnology, that is of ELISA technology, that is enzyme linked immunosorbent assay. Enzyme linked immunosorbent assay, that is of ELISA टेक्निक, जो कि बहुत लो कंसंट्रेशन पर, यानी पैथोजन की बहुत लो कंसंट्रेशन पे ये फाइंड आउट कर लेता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन को डिजीज है कि नहीं है. एड्स के अंदर बहुत हाई कंसंट्रेशन होती है तभी पता चलता, बट विद द हेल्प ऑफ ELISA टेस्ट दैट इज डिपेंड अपॉन एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट. But at a very low concentration, we have to find out the AIDS means the particular person is affected from the AIDS or not, with the help of ELISA test, that is enzyme linked immunosorbent assay के थ्रू पता किया जा सकता है. इसी तरह से एक दूसरा है PCR is that is of polymerase chain reaction. PCR क्या होता है? polymerase chain reaction. और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में बहुत लो कंसंट्रेशन है किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी बैक्टीरिया की या वायरस की. उस लो कंसंट्रेशन पे पीसीआर के थ्रू उसकी बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज तैयार की जा सकती है, और मल्टीपल कॉपीज से हमें पता लगा सकते हैं दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज अफेक्टेड फ्रॉम विच टाइप ऑफ डिजीज, वो किसी डिजीज से अफेक्टेड है या नहीं है, इससे अपन पता लगा सकते हैं. Nowadays, the human being prepared the different types of organism, or some organism is made up with the help of genetic modifications, and the organism which is formed with the help of genetic modification, that is known as transgenic animals. Transgenic animals means with the help of genetic modifications, many
organism is made through the organism, through the scientist, that is of mice, rabbit, pigs, sheep, cow, fish. These are the different transgenic or genetically modified organisms prepared by the human being. But out of these all organisms, 95% is of mice. We formed these organisms for the different purpose, and the main common reason due to which we formed these transgenic animals, first one is of normal physiology. Normal physiology and development. Normally, the transgenic animals can be specially designed for the study of gene. These are designed for the study of gene. Yani the particular genes, what the effect of that particular genes occur in the human beings. उस किसी जीन का ह्यूमन बींग में क्या इफेक्ट होगा, तो उस जीन को पहले इन ऑर्गेनिज्म में इनकॉर्पोरेटेड कर दिया, जिससे ट्रांसजेनिक एनिमल्स दिखेंगे, और फिर उस जीन से उनकी बॉडी पे क्या असर होता है, वो असर देखने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए जाते हैं. और क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि ह्यूमन बींग की और इन एनिमल्स की जो फिजियोलॉजी है और वो डेवलपमेंट सिमिलर होती है. ह्यूमन बीइंग की फिजियोलॉजी और इन ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट सिमिलर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, दोनों में वो सेम फंक्शन करेंगे. इफ दे आर नॉर्मल इन द ह्यूमन बीइंग, सॉरी इन द एनिमल्स, दे विल ऑल्सो नॉर्मल इन द ह्यूमन बीइंग. और वो अगर कोई साइड इफेक्ट है इन ऑर्गेनिज्म में, तो ह्यूमन बीइंग में भी उसका साइड इफेक्ट होगा. सेकेंड वन इज ऑफ स्टडी ऑफ डिजीज. स्टडी ऑफ डिजीज, किसी भी डिजीज की स्टडी के लिए भी इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज किया जा सकता है. यानी पर्टिकुलर डिजीज किस तरह से अफेक्ट करेगी, उसके रिजल्ट क्या होंगे, वो किस तरह से उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, उन सब को स्टडी पहले इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स में किया जाता है. थर्ड है इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूजेज, दैट इज बायोलॉजिकल प्रोडक्ट. Biological product means these transgenic animals can produce different types of product, and that will be useful for the human beings. Human being के लिए वो यूजफुल होंगे. क्या? ये सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट. जस्ट फॉर एग्जांपल अल्फा-1 एंटी ट्रिप्सिन, ये एक एंजाइम है जो कि एम्फासाइमा के ट्रीटमेंट के लिए बनाया जाता है. इट कैन बी एंड ऑल्सो फिनाइल कीटोन्यूरिया, इनकी स्टडी के लिए ये काम में आता है. सिस्टिक फाइब्रोसिस में काम में लिया जाता है. तो इनके लिए इनके प्रोडक्ट जो है वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स में बनाए जा सकते हैं. इसीलिए इसी तरह से एक रोजी काऊ 1997 में बनाई थी, दैट प्रोड्यूस 2.4 ग्राम प्रोटीन पर लीटर. यानी उसमें हाईएस्ट प्रोटीन था पर लीटर, जो कि ट्रांसजेनिक, यानी उससे जो प्रोटीन बन रहा वो थोड़े से अमाउंट से ज़्यादा प्रोटीन बन रहा. तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए, जैसे इंसुलिन का फॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसजेनिक एनिमल से भी किया जा सकता है, जो कि ह्यूमन बीइंग के काम आता है. ऑल्सो दीज ट्रांसजेनिक एनिमल्स यूटिलाइज फॉर द वैक्सीन सेफ्टी. वैक्सीन सेफ्टी यानी वैक्सीन का पहले पता लगाने के लिए उन ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे स्टडी की जाती है, फिर उसके बाद उस वैक्सीन को ह्यूमन बीइंग पे यूटिलाइज किया जाता है. डायरेक्टली कोई भी वैक्सीन ह्यूमन बीइंग पे टेस्ट नहीं किया जाता. तो सारे ये वैक्सीन वगैरह जो टेस्ट है वो पहले ह्यूमन. एंड अनदर वन इज ऑफ केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग.
केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। बहुत सारे दूसरे केमिकल्स है दैट विल बी सेफ फॉर ह्यूमन बीइंग और नॉट, तो दैट केमिकल्स इज ऑल्सो टेस्ट ऑन द ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो उन पर जो रिजल्ट आते हैं उनके रिजल्ट के आधार पर उसको स्टडी किया जाता है ह्यूमन बीइंग पे। नेक्स्ट है इथिकल इश्यूज। इथिकल्स इश्यू यानी इफ वी मैनिपुलेट द जीन्स ऑफ एनी एनिमल्स, व्हाट वी विल बी द इफेक्ट ऑन द सोसाइटी। कौन कौन से इथिकल इश्यू आ सकते हैं अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म की जो जेनेटिक कंटेंट को चेंज कर दें तो सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हो सकता है वो किसी ऑर्गेनिज्म की मॉर्टेलिटी को इंक्रीज कर दे, डिक्रीज कर सकता है। हो सकता है जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाएंगे तो उनके अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट निकले और वो सारे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर सकती है। तो इन सभी चीज़ों को पता करने के लिए या इन सभी चीज़ों से बचने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है GEAC से परमिशन लेना, दैट इज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी विच make the decision regarding to the validity of GM research, genetic modified research। अगर किसी को करनी है, किसी पर्टिकुलर टाइप का ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाना है या नहीं बनाना है, तो दिस GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी will approve the particular type of organism, then after the scientist can be use the particular organism to modify their genomes, कि उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, उससे प्रॉपर मेडिसिन बनेगी या नहीं। तो वी हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द GEAC। आजकल लोग या बहुत सारी कंपनीज विदाउट परमिशन के ही ये काम करने लगे। वी नो इन इंडिया राइस इज ग्रोइंग सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर बैक। इंडिया में राइस कई सालों से ग्रो किया जा रहा है। अगर इंडियन एग्रीकल्चर हिस्ट्री का पता लगाए तो यहाँ पर इंडिया में लगभग 2 लाख राइस की वैरायटी इंडिया में ग्रो की जाती है, लगभग 2 लाख राइस वैरायटी। और उसके अंदर से में लगभग 27 वैरायटी ऐसी है जो बासमती राइस की लगभग 27 वैरायटी बासमती राइस की है, विच आर ग्रोन इन इंडिया from since so many thousands of years. But in 1997 में an American company get patent to produce and sell the new variety of basmati। यानी 97 के अंदर अमेरिकन कंपनी ने एक पेटेंट बना लिया कि वो अकेली कंपनी जो बासमती राइस को प्रोडक्शन कर सकती है और सेल कर सकती है वर्ल्ड वाइड, जबकि इंडिया में थाउजेंड्स ईयर से अपन बासमती राइस को ग्रो कर रहे हैं, खा रहे हैं। और उन्होंने बासमती राइस बनाई थी बाय द क्रॉसिंग ऑफ सेमी ड्वार्फ वेराइटी, सेमी ड्वार्फ variety crossed with Indian basmati variety, Indian बासमती वैरायटी, इंडियन बासमती वैरायटी के साथ उन्होंने सेमी बासमती वैरायटी को क्रॉस किया और अपना नया इन्वेंशन कर लिया। और उन्होंने बता दिया, पेटेंट बना लिया कि ओनली वी आर द पर्सन दैट प्रोड्यूस basmati rice worldwide, produce and sell, no one can other in the world sell and produce the basmati rice। जबकि इंडिया के अंदर ये बरसों से काम हो रहा। तो फिर इंडियन गवर्नमेंट्स ने इसको क्या कहते हैं जो रोका, वर्ल्ड
कोर्ट के अंदर गए और फिर उस पेटेंट को रुकवाया कि ऐसा नहीं है। इसी तरह से टर्मरिक है, नीम है, इनके भी पेटेंट बने थे कि ओनली द सम कंपनीज आर टू प्रोड्यूस डिफरेंट मेडिसिन्स फ्रॉम द नीम एंड टर्मरिक, बट वी ऑल आर नो दैट फ्रॉम सो मेनी thousands of year we produce the different types of medicines from neem and turmeric। हम बरसों से ये बना रहे हैं, जबकि उन्होंने पेटेंट करा लिया, तो इन ऐसे पेटेंट को फिर कैंसिल कराएगा। एंड द लास्ट टॉपिक इज ऑफ दिस चैप्टर इज ऑफ बायो पायरेसी। बायो पायरेसी मतलब क्या होता है? द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज by multinational company। multinational company and other organization without proper ऑथराइजेशन और विदाउट सर्टिफिकेट्स। यानी मल्टीनेशनल कंपनी और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन कुछ अनडेवलप्ड कंट्री की बायो रिसोर्सेज को उनकी परमिशन के बिना यूटिलाइज कर रही है, उसको क्या कर सकते हैं? बायो पायरेसी कर सकते हैं। बिकॉज दिस मल्टीनेशनल कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन हैविंग are from the different developed country, they having money and technology, but these country not having the particular types of bio resources. So these company utilize the resources of less developed country or undeveloped country without their without taking their from their permission and without their knowledge. That is the biopiracy। तो मार्केट में आजकल बहुत सारी चीज़ें इस तरह से बनने लगी है, डुप्लीकेट चीज़ें जो बनती है बिना परमिशन के उस पर्टिकुलर ब्रांड या कंपनी के थ्रू, जो जितनी भी डुप्लीकेट चीज़ें आती हैं, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ बायोपायरेसी। तो इसी तरह से ऑर्गेनिज्म के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए भी बायोपायरेसी हो सकती है। यानी किसी मल्टीनेशनल कंपनी के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो पुअर कंट्रीज होती हैं उनके रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है उनकी परमिशन के थ्रू बिना, तो वो बायोपायरेसी कहलाता है। तो नाउ इसके अवेज में उनको थोड़ा बहुत पैसा दे दिया जाता है, कुछ दे दिया जाता है, परंतु वो उन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके उन रिसोर्सेज को ले जाते हैं और वो कंट्री कुछ नहीं कर पाती। सो नाउ वी स्टडीड दिस चैप्टर दैट इज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ biotechnology। So very huge usage of biotechnology in the society। If we formed the particular type of organism in the systematic way, it will be great helpful for the society in the different ways or in different industries in different manner। अलग अलग तरीके से सबसे बड़ा इसका जो मेन यूजेज होगा, मेन यूटिलाइजेशन होगा बायोटेक्नोलॉजी का इन फ्यूचर, दैट इज़ इन द मेडिसिन। यानी बहुत सारी इतनी जेनेटिक डिजीज़ है, अनक्यूरेबल डिजीज़ है, जिनको बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही अपन क्योर किया जा सकता है। इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक है स्टेम सेल टेक्निक, जो कि मैंने कल अपन ने डिस्कस की थी। स्टेम सेल टेक्निक में अनडिफरेंशिएट सेल होती है जो कि एम्ब्रियोनिक मास से ली जाती है, और दैट कैन ट्रीट द ईच एंड एवरी टाइप्स ऑफ डिजीज ऑफ द ह्यूमन बींग्स। इसके थ्रू हर तरह की डिजीज को ट्रीट किया जा सकता है। और इफ़ वी यूटिलाइज द बायोटेक्नोलॉजी इन पॉजिटिव वे बाय द लीगल ऑथराइजेशन, वी विल मेक वर्ल्ड डिजीज फ्री। ओके।